اور پاکستان کی ٹیم کو، پاکستان کی قوم کو مبارک ہو۔ آج ہمارا فائنل تھا، ہمارا فائنل آج ہی تھا، اور دنیا کے مسلمان سمیت ہندوستان کے مسلمانوں کے ان کے جذبات پاکستانی ٹیم کے ساتھ تھے۔ ساری عالم اسلام کو فتح مبارک ہو۔ تو ہمارے پڑوسی ملک کا ایک منسٹر ہے، پاگل ہے بیچارہ، پاگل ہے، اس نے کہہ دیا کہ پاکستان جیتا تو اسلام کی کامیابی ہو گئی۔ ارے احمق، دین اسلام کو کرکٹ میچ سے کیا کرنا ہے؟ دین کو کرکٹ میچ سے کیا کرنا ہے؟ مگر یہ پڑوسی کے لوگ سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بزرگ نہیں گئے وہاں پر، ورنہ ان پاگلوں کو ہم کو دیکھنا پڑتا، جو لوگ گئے ان کو پتا ہے۔ جب ہم ان فرقہ پرستوں کو کہہ رہے ہیں تو ان کو بھی کہنا پڑے گا، پڑوس کے جو منسٹر نے بیان دیا، ارے یہ تم کو شرم نہیں ہے کہ تمہارے ملک کو چین کے پاس گروی کرتی ہو اور تم اسلام کی بات کرتے ہو؟ وہ چین جو زنجیانگ میں مسلمانوں کو 20 لاکھ مسلمانوں پہ قید میں بند کر دیا، جن کو جبرن سور کھلایا جا رہا ہے چین میں، آج وہ منسٹر اسلام کی کامیابی کی بات کرتا ہے۔ ارے منسٹر، پاکستان میں تم ایک ملیریا کی دوا نہیں بنا سکتے، تم ایک موٹر سائیکل کا ٹائر تیار نہیں کر سکتے۔ بھارت بہت آگے ہے، بھارت سے پنگا مت لو۔ یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہم گھر میں طے کر لیں گے، ہم کو پاکستان سے کبھی مطلب تھا نہ کبھی رہے گا، اور ہم یہ ہمارے شمی کو گالی دینے والوں سے کہیں گے، پیارے شمی کے جیسا بالر پھر کبھی نہیں ملے گا۔ پچھلے سال ربیع الاول شریف کے ابتدائی دنوں میں فرانس میں سرکاری سطح پر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، نعوذ باللہ من ذالک، جس پر تحریک لبیک کے امیر علامہ خادم حسین رضوی، جو اس وقت حیات تھے، نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ اس گستاخی پر اپنے مومنانہ جذبات کے اظہار کے لیے کم از کم ان 3 باتوں پر عمل کیا جائے۔ میں بالکل قریب آ کر تمہیں یہ کہہ رہا ہوں، پھر نہ کہنا بعد میں کہ جی ہمیں آپ نے مہلت نہیں دی۔ اس کا سفیر نکالو، سفیر بھیجو، اپنا سفیر واپس بلاؤ، مصنوعات کا بائیکاٹ کرو۔ یہ معمولی سا مطالبہ ہے، اس مطالبے کی کوئی حیثیت نہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی کا کہنا تھا کہ فرانس میں گستاخی سرکاری سطح پر ہوئی ہے، لہٰذا جواب بھی سرکاری سطح کا ہونا چاہیے۔ لاہور، کراچی، پشاور اور دیگر شہروں میں احتجاجی مارچ، کانفرنسز، اور پچھلے سال 12 ربیع الاول کے مبارک دن 3 کروڑ مسلمانوں نے جشن ولادت کی خوشی کے ساتھ ساتھ یہ مطالبات دہرائے، لیکن تقریباً 1 ماہ گزرنے کے باوجود حکومت پاکستان کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ یہی مطالبات لے کر لاکھوں اہلیان کراچی امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی کی قیادت میں مارچ کرتے ہوئے ایئرپورٹ تا مزار قائد آئے، لیکن پھر بھی حکومت نے کان نہیں دھرا۔ بالآخر مسلسل پکار کے باوجود کان نہ دھرنے پر علامہ خادم حسین رضوی نے 15 نومبر کو لیاقت باغ تا فیض آباد مارچ کا اعلان کر دیا۔ 15 نومبر کو اعلان کے مطابق لاکھوں عاشقان رسول سخت پابندیوں کے باوجود لیاقت باغ پہنچے اور ہزاروں لوگوں کو راستے میں ہی گرفتار کر لیا گیا، لیکن یہ کارواں شدید ظلم و ستم سہتا ہوا آنسو گیس کی بارش میں بالآخر اپنی منزل کو پہنچا، جہاں 2 روز تک احتجاجی دھرنا دیا گیا۔ دھرنے کی پہلی رات حکومت نے نہتے مظاہرین پر شب خون مارا اور ہزاروں فورسز کے ساتھ دھرنے کا گھیراؤ کر کے گرینڈ آپریشن کا آغاز کر دیا، لیکن لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں اور جذبہ ایمانی کی وجہ سے حکومت کا یہ حملہ مکمل ناکام ہوا۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ شدید علالت کے باوجود امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب دھرنے میں موجود رہے اور ناموس رسالت پر پہرا دیا۔ حملے کی ناکامی کے بعد حکومت نے مذاکرات کا آغاز کیا۔ طویل مذاکرات کے بعد حکومت کی جانب سے 3 ماہ کی مہلت مانگی گئی اور کہا گیا کہ ملک بدری کا معاملہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا اور پارلیمنٹ میں قانون سازی کے ذریعے فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کیا جائے گا۔ اس معاہدے کے 2 دن بعد 19 نومبر کو امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علامہ صاحب کا جنازہ 21 نومبر کو ان کے بیٹے صاحبزادہ سعد حسین رضوی نے آزادی چوک مینار پاکستان پر پڑھایا اور جنازے میں غیر ملکی میڈیا کے مطابق کروڑوں لوگ شریک ہوئے۔ اس موقع پر نائب امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب نے اعلان کیا کہ شورا کے اتفاق سے آئندہ تحریک کے امیر صاحبزادہ سعد حسین رضوی صاحب ہوں گے۔
जनाजे के इज्तमा और अल्लामा साहब रहमतुल्लाह अलैह के चहलुम पर मुसलसल तहरीक की क़यादत हुकूमत पाकिस्तान को वादा याद करवाती रही और बार बार बताया गया कि 17 फरवरी तक हमारा मुआहिदा है, लिहाजा फ्रांसीसी सफीर को पार्लियामेंट के जरिए मुल्क बदर करो और हमारे मुआहिदे पर मिनुअन अमल करो। लेकिन 3 माह तक ख्वाब खरगोश के मजे लेने वाली हुकूमत ने मुआहिदे पर अमल दरामद की मोहलत खत्म होने पर के बाद वजीर आजम इमरान खान का वादा पूरा करने की गारंटी के बाद तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 माह की मजीद मोहलत देकर मुआहिदे की दोबारा तौसीक कर दी। मुआहिदा हो गया है कि जो इन्होंने अपनी डेट दी हुई थी फरवरी की, ये चली गई 20 अप्रैल के ऊपर, और 20 अप्रैल के बाद मुआहिदे के तहत हम पार्लियामेंट के अंदर ये जो इनकी डिमांड्स हैं वो रख देंगे। 50 दिन मजीद गुजर गए मगर किसी तरह की कोई पेशरफ्त न हुई। 10 अप्रैल को तहरीक लब्बैक की मरकजी शूरा का इजलास हुआ, जिसका ऐलामिया तहरीक के अमीर ने पढ़कर सुनाया और ऐलान किया कि हुकूमत अपना वादा पूरा करे और इन 10 दिनों में अपनी नेकनियती जाहिर करे। बसूरत दीगर 21 अप्रैल की तारीख लगते ही हमारी मुआहिदे की मुद्दत खत्म हो जाएगी और हमें एहतजाज की तरफ जाना पड़ेगा। इजलास का ऐलामिया आते ही अगले रोज हुकूमत ने अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को गिरफ्तार कर लिया और मुआहिदा तोड़ दिया। साहबजादा साहब की गिरफ्तारी पर आशिकान रसूल को यह यकीन हो गया कि हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए किए गए वादे को पूरा नहीं करना चाहती, इसीलिए तोड़ दिया गया। लिहाजा मुल्क के तूल अर्ज में एहतजाज शुरू हो गए। एहतजाजी मुजाहिरीन के मुतालिबात पर कान धरने की बजाय पूरी ताकत लगाकर मुजाहिरों को कुचलने की कोशिश की। ताकत के नशे में धुत हुक्मरानों ने मुजाहिरीन पर सीधी गोलियां बरसाईं और वाटर कैनन से तेजाब फेंका गया, जिसके नतीजे में पूरे पाकिस्तान में 24 मुजाहिरीन नामूस रिसालत शहीद हो गए। हजारों लोग माजूर हो गए, बहुत बड़ी तादाद में जख्मी हुए और पूरे पाकिस्तान में एटीसी के मुकदमात के तहत हजारों गिरफ्तारियां हुईं। सिर्फ सूबाए पंजाब में दहशतगर्दी के 1200 मुकदमात दर्ज किए गए। हजारों जिम्मेदारान और कारकुनान के नाम 4th शेड्यूल में डाल दिए गए। काबीना से इमरजेंसी इजलास करके तहरीक लब्बैक को कलअदम करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस शदीद जुल्म बर्बरियत के खिलाफ 19 अप्रैल को पूरे मुल्क के ताजिरों ने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के कॉल पर एहतजाजन अपना कारोबार रजाकाराना तौर पर बंद रखा, जिसके नतीजे में हुकूमत एक बार फिर मुज़ाकरात पर मजबूर हुई और 20 अप्रैल की सुबह बिलाखिर मुज़ाकरात कामयाब हो गए। तवील मुज़ाकरात के बाद ये तय पाया कि अगले दिन असेंबली में फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी की करारदाद पेश करके कानून साजी की जाएगी। टीएलपी के कायद हाफिज साद हुसैन रिजवी और हजारों गिरफ्तार कारकुनान को रिहा किया जाएगा। 4th शेड्यूल नए और पुराने से तमाम नामों का इखराज किया जाएगा। तमाम FIRs मुकदमात को वापस इखराज किया जाएगा और तहरीक लब्बैक को जो कलअदम करार दिया गया था उसे भी वापस लिया जाएगा। मुआहिदे के बाद मरकजी धरने को हटा लिया गया। अगले दिन कौमी असेंबली में मुख्तसर करारदाद एक प्राइवेट मेंबर से दिलवाई गई और उस पर अराकीन पार्लियामेंट की चाहत के बावजूद उनकी राय लिए बगैर कार्रवाई को दरमियान में रोककर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। एक बार फिर वादा खिलाफी हुई। न तो हाफिज साद रिजवी साहब, और वो 7 माह गुजरने के बावजूद अब तक असीर हैं, और न ही हजारों असीरान की रिहाई हुई और न कलअदम का लेबल हटाया गया। तहरीक की मुज़ाकराती टीम से इब्तदा में टाल मटोल की जाती रही, फिर उनसे मुकम्मल राबिता खत्म करने के लिए मुज़ाकराती टीम के अराकीन को ही गिरफ्तार कर लिया गया। इसी दौरान अपनी मदद आप के तहत हजारों कारकुनान ने अदालतों से जमानतें करवाईं। 2 बार अदालतों के हुक्म आने के बावजूद मुख्तलिफ ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए गए। तौहीन अदालत का इर्तकाब करते हुए हुकूमत ने हाफिज साद हुसैन रिजवी की रिहाई में रुकावटें डाल दी। तीसरी बार फिर तहरीक लब्बैक के हक में अदालती फैसला आया और तहरीक के अमीर को फौरी रिहा करने का ऑर्डर जारी किया गया, तो पूरे मुल्क के जिम्मेदारान और कारकुनान में खुशी की लहर दौड़ गई और मुल्क के तूल अर्ज से आशिकान रसूल साहबजादा साहब के इस्तकबाल के लिए लाहौर में जमा हुए। लेकिन पूरे पाकिस्तान की हैरत की इंतहा न रही जब हाईकोर्ट के अहकामात को भी इंतजामिया ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया और साहबजादा साहब को रिहा करने से इनकार कर दिया। यकुम रबीउल अव्वल से मुसलसल 11 रोज तक पाकिस्तान भर में रोडों के किनारे खड़े होकर हजारों आशिकान रसूल ने हुकूमती बदअहदी, अदालती अहकामात न मानने के खिलाफ और मुआहिदे पर अमल दरामद करवाने के लिए एहतजाज किया। इसके बावजूद हुकूमत ने टीएलपी की क़यादत से कोई राबता न किया। बिलाखिर किसी तरफ से कोई सुनवाई न होने पर 19 अक्टूबर को जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के बाद मस्जिद रहमतल लिल आलमीन लाहौर के बाहर
हजारों आशिकान रसूल ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद के लिए धरना दिया और हुकूमत को 2 दिन का वक्त दिया गया कि फौरी तौर पर अदालती अहकामात पर अमल किया जाए और हमसे किए गए मुआहदे पर मेनोअन अमल किया जाए, वरना 21 अक्टूबर को अगले लाहे अमल का ऐलान कर दिया जाएगा। 21 अक्टूबर तक किसी तरह का कोई राबता न होने के बाद ऐलान किया गया कि अक्टूबर बरोज़े जुमा बाद नमाज जुमा इस्लामाबाद तक मार्च किया जाएगा। हुकूमत ने बातचीत के बजाय ताकत से मार्च को रोकने का फैसला किया। इसके बाद जो कुछ नामूसे रिसालत मार्च के शुरका के साथ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह निहत्ते मुजाहिरीन पर हुकूमत और रियासती इदारों ने स्ट्रेट फायरिंग और बदतरीन शेलिंग करके दर्जन के करीब नौजवानों को शहीद, सैकड़ों को जख्मी और कई अफराद को माजूर कर दिया। जिस वक्त मुजाहिरीन पर बदतरीन जुल्म सितम किया जा रहा था, ऐन उस वक्त वजीर आजम कई वज़रा के हमरा सऊदिया में पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेट मैच को एंजॉय कर रहे थे और वजीर दाखिला तो पहले ही मैच देखने के लिए दुबई रवाना हो चुके थे। हुकूमती बदअहदी और बदनीयती तो पहले ही वाज़ेह थी, लेकिन इस बार झूठ बोलने की इंतहा ही कर दी। शेख रशीद और फवाद चौधरी ने 3 दिन तक पूरी कौम को बेवकूफ बनाकर रखा है। बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके एक ही बात करते रहे कि हम सफीर की मुल्क बदरी और फ्रांसीसी एम्बेसी को बंद करने के अलावा तमाम मुतालिबात मानने को तैयार हैं। ये मजहबी नहीं, अस्करी गिरोह है, वगैरह वगैरह। हालांकि ये बात मार्च के दौरान कायदीन ने वाज़ेह कर दी थी कि असेंबली में करारदाद पेश करके बहस करवाई जाए और जो भी फैसला आया हक में या मुखालफत में हम उसे तस्लीम कर लेंगे। साथ ही साथ ये भी पता लग जाएगा कि कौन से वज़रा सिर्फ नारे लगाते हैं और कौन हकीकतन तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत पर पहरा देते हैं। टीवी पर आकर मुसलसल झूठ बोले जा रहे थे कि हमारे उनसे मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन तहरीक लब्बैक के कायदीन बात मानने को तैयार ही नहीं। हकीकत यह है कि तहरीक लब्बैक की मुज़ाकराती टीम को 3 दिन से इस्लामाबाद बुलवाकर एक कमरे में बिठा दिया है और किसी ने उनसे मुज़ाकरात नहीं किए। नामूसे रिसालत जैसे हसास इशू पर हुकूमती वज़रा का मुसलसल झूठ बोलना समझ से बालातर है। इस धोखेबाजी का अंजाम दुनिया व आखिरत में बहुत बुरा सबब होगा। और पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान की कौम को मुबारक हो, आज हमारा फाइनल था। हमारा फाइनल आज ही था और दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के उनके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। कि आप मुसलमानों की फिक्र करना छोड़ दीजिए हिंदुस्तान के, हम अपना फैसला कर चुके हैं, ये हमारा मुल्क है और हम यहां पर अपने मसाइल जमहूरियत में मिलकर तलाश कर रहे हैं। आप हमारी छोड़ दीजिए। करना चाह रहा हूं कि आप हिंदुस्तान के मुसलमानों की प्लीज फिक्र करना छोड़ दीजिए, यहां के मुल्क के मसाइल का हल तलाश करिए। हम आपका मसाइल का हल तलाश करने में आसानी पैदा करेंगे। हमने फैसला कर लिया 60 साल पहले कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, ख्वाजा अजमेरी की सरजमीन हमारी सरजमीन है, तो आप इसका छोड़ दीजिए। दूसरी बात, खुर्रम साहब आप भूल रहे हैं, ये पाकिस्तान का वजीर आजम से भी बोलना चाहूंगा। पाकिस्तान के वजीर आजम, आप हिंदुस्तान के मुसलमानों की फिक्र करना छोड़ दो, हमारे लिए अल्लाह काफी है। हम हस्बुनल्लाह व निअमल वकील कहने वाले हैं, निअमल मौला व निअमल नसीर कहने वाले हैं। और पाकिस्तान के वजीर आजम झूठा वीडियो डालते। मिस्टर खान, यू वरी अबाउट योर ओन कंट्री। मिस्टर खान, वी वुड लाइक टू टेल यू, डोंट एवर रिमेंबर अस। We have rejected the पैगाम, the message, the wrong thing। पाकिस्तान के वजीर आजम टीपू सुल्तान की बात किए। ओफो अब्बा, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह हिंदुओं के दुश्मन नहीं थे, वो उनके सल्तनत के जो दुश्मन थे, चाहे मुसलमान थे कोई मजहब के उनके दुश्मन थे। जरा ये भी पढ़ लो, आप वहां बैठ के अपनी कौमी असेंबली में टीपू सुल्तान, बहादुर शाह जफर। मैं आज से कहने वाला हूं कि हमारा कोई सियासी आका नहीं है, हमारा कोई हकीकी आका है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर हम किसी के गुलाम हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। अगर हम किसी के वास्ते दिल में मोहब्बत रखना है तो रहमतुल आलमीन के लिए मोहब्बत रखना है। किसी से डरना है तो रब्बे कायनात से डरना है। इन दो टाइम के जनरलों से, इन इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों से